अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 20 जमादिल अव्वल है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला का फरमान है, जिस वक्त बंदा मुझसे दुआ करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। और अब सुर्खियां। जेटली ने पेश किया आम बजट, देहातों पर तवज्जो, टैक्स इस्लाहात, अक़लियतों के लिए 3,827 करोड़ रुपए मुख्तस। हवाई सफर, हीरे जवाहरात, स्मार्टफोन, सिगरेट वगैरह महंगे, डायलिसिस मशीन और फुटवेयर हुए सस्ते। बजट पर मिला जुला रद्द-ए-अमल, बेहतरीन बजट, हुकूमत का दावा, बजट कॉरपोरेट्स के हक में, अपोजिशन का रद्द-ए-अमल। चंद्रबाबू हुकूमत के खिलाफ पेश की जाएगी तहरीके अदम एतमाद, YSRCP ने किया फैसला। और अब तफसील। मरकजी वजीर फाइनेंस अरुण जेटली ने आज पार्लियामेंट में साल 2016 और 2017 का आम बजट पेश किया। बजट में देही हिंदुस्तान, ज़राअत, इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्स इस्लाहात पर तवज्जो दी गई है। बजट में ज़राअत और किसानों की तरक्की के लिए इक़दाम करने का जिक्र किया गया है। बजट में मनरेगा के लिए काफ़ी रकम मुख्तस की गई है। कौमी शाहराहों, SC और ST सनतकारों पर तवज्जो दी गई है। ताहम अक़लियतों के लिए मामूली रकम का इजाफा किया गया है। ऐसा मालूम होता है कि हुकूमत ने चंद रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नजर बजट तैयार किया है। Budget is being presented amidst a global and domestic headwinds. There are several challenges. We see them as opportunities. I have outlined the agenda of our government to transform India for the benefit of the farmers, the poor and the vulnerable. Madam Speaker, it is said that champions are made out of something they have deep inside them: a desire, a dream, a vision. We have a desire to provide socio-economic security to every Indian, especially the farmer, the poor and the vulnerable. We have a dream to see a more prosperous India and a vision to transform India. With these words, Madam, I commend the budget to this House for acceptance. Madam Speaker, I rise to move leave to introduce the Finance Bill 2016. Madam, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2016. Yes. The question is that leave is granted to introduce the Finance Bill 2016. Those in favor may say aye, against may say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the leave is granted. The Minister may now introduce. Madam, I introduce the bill. Thank you. The House stands adjourned to meet again tomorrow, 1st March 2016 at 11 a.m. आम बजट में इस मौशी साल टैक्स के स्लैब में कोई तब्दीली नहीं की गई है, जबकि सालाना 5 लाख रुपये टैक्स के अंदर तनख्वाह पाने वाले मुलाजिमीन को मजीद 3,000 रुपये का टैक्स इस्तिस्ना हासिल रहेगा। वहीं किराए के घरों में रहने वाले मुलाजिमीन जिन्हें किराए अलाउंस हासिल न होता है, उनके टैक्स के इस्तिस्ना की रकम को 24,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दिया गया है। To lessen the burden on individuals with income not exceeding 5 lakhs, I propose the ceiling of tax rebate under Section 87A from 2,000 to rupees 5,000. There are more than 2 crore taxpayers in this category who will get a relief of rupees 3,000 in their tax liability. The people who do not have any house of their own and do not get any house rent allowance from their employer today get a reduction of rupees 24,000 per annum in their income to compensate them for the rent they pay. I propose to increase the limit of deduction in respect of rent paid under Section 80GG from rupees 24,000 per annum to rupees 60,000 per annum, which should provide relief to those who live in rented houses. Non-residents without PAN are currently subject to a higher rate of TDS.
it is proposed to amend the relevant provisions to provide that on furnishing an alternate document, the higher rate will not apply. मरकजी आम बजट में इस साल 3,827 करोड़ की रकम अक़लियतों को मुख्तस की गई है। इस साल अक़लियतों के बजट में मामूली इजाफा किया गया। पिछले मालियाती साल अक़लियतों के लिए 3,736 करोड़ का बजट मुख्तस किया गया था। इस साल महज 91 करोड़ रुपयों का इजाफा किया गया है। मरकजी वज़ीर फाइनेंस अरुण जेटली ने लोकसभा में अक़लियतों के लिए मुख्तस बजट के बारे में आगाह किया। इस साल बजट में क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है, सस्ते होने वाली अशिया और महंगी होने वाली अशिया पर एक नजर डालेंगे। एक्साइज ड्यूटी में इजाफे से महंगी होने वाली चीजें कुछ इस तरह से हैं: हवाई सफर, जेवरात, गोल्ड ज्वेलरी, हीरे जवाहरात, नगीने, स्मार्टफोन, लग्जरी कारें, कंप्यूटर्स, रेस्टोरेंट में खाना, मिनरल वाटर, तंबाकू, सिगरेट, ब्रांडेड कपड़े, रेडीमेड कपड़े, ब्यूटी पार्लर की सर्विस और कोयला वगैरह ये अशिया महंगी हुई हैं। टैक्स ढांचे में रद्दबदल से सस्ते होने वाली अशिया के नाम कुछ इस तरह से हैं: फुटवेयर, चप्पल, जूते, सोलर लैंप्स और रूटर्स सस्ते हुए हैं। डायलिसिस मशीनें भी सस्ती हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बजट की सताइश करते हुए अरुण जेटली की तारीफ की है। मोदी ने बजट को आम आदमी, गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों के लिए फायदेमंद करार दिया है। इस बजट के लिए हमारे वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जेटली जी को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं। गांव, गरीब, किसान, महिलाएं और युवा इस बजट का हमारा सबसे बड़ा फोकस है। इनके जीवन में क्वालिटेटिव चेंज लाने के लिए इसमें कई योजनाएं रखी गई हैं। यह बजट गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए समयबद्ध और व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। किसानों की आय को दुगुना करने की दिशा में इस बजट में कई अहम कदम उठाए गए हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण कदम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसके तहत निवेश में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई है और हर खेत को पानी पहुंचाने की दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास है। बजट की हुक्मरान जमात ने तायद की है तो अपोजिशन ने इस पर तनकीद की है। साबिक वजीर फाइनेंस यशवंत सिन्हा ने कहा है कि इस बजट में हर शोबे के लिए कुछ न कुछ रखा गया है। उन्होंने आम कॉरपोरेट शोबे के साथ साथ गरीबों के लिए बजट को फायदेमंद करार दिया। संदेह नहीं है कि इस बजट को जब लोग गौर से देखेंगे, समझेंगे, तो पाएंगे कि इसमें हर क्षेत्र के लिए, सबके लिए कुछ न कुछ है। जोर जरूर है ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर और बहुत अच्छी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर जोर है, लेकिन उसके साथ ही साथ कॉरपोरेट इंडिया के लिए भी बहुत कुछ है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो फिलॉसफी है वो ये है कि जो बहुत अमीर लोग हैं उनसे थोड़ा लेकर जो गरीब हैं उनको राहत पहुंचाई जाए। लोकसभा में कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट को कॉरपोरेट बजट करार दिया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत कॉरपोरेट शोबे को फायदा पहुंचाने की कोशिश पर कारबंद है। नहीं, ये देखिए, 5% सेस तो सबके पास ले रहे हैं और वही किसानों को देने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको पूछता हूं कि 2 साल जब ड्रॉट गिरा है, हर जगह किसान परेशान है, तो उनका कर्ज माफ करने का उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं किया। और जितने भी काले धन रखे हुए हैं उन लोगों को राहत देने के लिए 45% टैक्स लेकर उनको वाइट बनाने का उनका एक प्रयास जो चल रहा है, वो जैसा कि पहले भी वो कॉर्पोरेट के फेवर में थे, अभी भी वही कॉर्पोरेट के फेवर में है। और दूसरी चीज, जो इनकम टैक्स में बहुत से रिलैक्सेशंस लाकर जिनको फायदा उन्हें पहुंचाना चाहते थे, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस बजट में भी ये इनकम टैक्स बजट है। मिडिल क्लास को बहुत
सीपीएम ने भी इस बजट को गरीब और मुतवस्सित तबके के मुखालिफ करार दिया है। सीपीएम एमपी मोहम्मद सलीम ने कहा कि हुकूमत के बजट में कई उमूर में तवाज़ुन नहीं पाया जाता है। सरकार की जो दिशा है उसी तरह से है कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर को किस तरह से, एफडीआई को किस तरह से और ज्यादा बढ़ावा दे। स्वदेशी के नाम पर कभी बीजेपी करती थी, अभी वो रिटेल चेन में भी एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए 100% कोशिश कर रही है। और दूसरी बात है, सरकार भाषण में जो कुछ भी कहे मंत्री किसान के लिए, खेती के लिए या ग्रामीण उद्योग के लिए, ग्रामीण सड़क के लिए, तो आप देखेंगे लेकिन हकीकत में पिछले साल बजट में इन तमाम खात में जो पैसा रखा गया था प्लान में, उसमें लेकिन इसी क्षेत्र में कमाया गया है। तो यहाँ तक कि चाइल्ड एंड वेलफेयर, जब हमारे यहाँ तक कि गुजरात में ही मेल न्यूट्रिशन इतना बढ़ रहा है, महिलाओं की दुर्दशा बढ़ रही है, उसमें पिछले बार प्लान बजट में जो भी पैसा रखा गया था उसमें कटौती हुई है। तो सरकार की घोषणा का कोई मतलब नहीं है, बाबा ले लेते हैं, ताली ठोक देते हैं, बाद में उसमें वो कटौती कर देते हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसको 20,000 करोड़ रुपया बढ़ाया गया और डायरेक्ट टैक्स में 1,000 करोड़ रुपया का कटौती हुई। तो इसका मतलब है, जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है कि आम जनता को अक्रॉस बोर्ड सबको टैक्स देना पड़ेगा। जो भाजपा के समर्थक उनको भी कान ऐड करके पैसा ले रही है सरकार, और प्रोग्रेसिव टैक्स के खिलाफ है। बल्कि डायरेक्ट टैक्स को बढ़ाना चाहिए, इंडेक्स टैक्स को हटाना चाहिए, उसके अंदर बैलेंस लाना चाहिए। उस बैलेंस को सरकार तोड़ रही है, जो गरीब विरोधी है और मध्यम वर्ग के विरोधी है। आम बजट पर वायएसआर कांग्रेस पार्टी ने अपना रद्द-ए-अमल दिया है। वायएसआर कांग्रेस पार्टी के अरकान पार्लियामान ने बजट को मजमूई तौर पर इत्मीनान बख्श बताया, ताहम इसमें आंध्र प्रदेश के लिए इंसाफ नहीं किया गया। बजट में स्पेशल स्टेटस का जिक्र नहीं किया गया। वहीं रेल बजट में आंध्र प्रदेश को रेलवे जोन नहीं दिया गया। బడ్జెట్ గురించి మనం సరే పాజిటివ్గా ఉందని చెప్పదలుచుకున్నాం, కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించినటువంటి ముఖ్య విషయాలు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రత్యేక హోదా అనేది బహుశా మాకు ఎక్కడా కనిపించలేదు. అది ఇంకా అటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్ ఉంటే ఆయన చదివే ఉండేవారు. అది లేకపోవడం ఆంధ్రప్రదేశ్కి తీరిన కొరత. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం, కొత్తగా ఏర్పడిన రాష్ట్రం బాగుపడాలంటే తప్పనిసరిగా ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వాలనేది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క ధ్యేయము. మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకులు కూడా ప్రతి చోట తిరిగి అవేర్నెస్ కల్పిస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు కూడా మనం చూస్తున్నాం. పేదవాడికి ఉండటానికి ఇల్లు, ఆరోగ్యం, తినడానికి తిండి, ఈ 3 కార్యక్రమాల మీద కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. కాబట్టి ఈరోజు మొట్టమొదట ఆర్థిక శాఖ మంత్రి గారు ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్లో రైతులకి, రూరల్ ఎకానమీ, ముఖ్యంగా పేదల ఇళ్లలో వంట చేసుకునే వాళ్ళకి గ్యాస్ స్టవ్ సౌకర్యం కల్పించడం అనేది చాలా మంచి పరిణామం. బికాజ్ దానివల్ల ఈ కట్టెపొయ్యిలు ఈ వాడటం వల్ల ఎంతోమంది అనారోగ్యం అవ్వకుండా వాళ్ళ జీవితాలు బాగుపరిచినట్టుంటుంది. కాబట్టి మొత్తం మీద ఈరోజు ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్లో పేదవాడికి, రైతుకి, గ్రామీణ ప్రాంతాల వాళ్ళకి ఎంతో మేలు చేసే కార్యక్రమం ఇచ్చారని చెప్పి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. కానీ రాష్ట్రానికి మాత్రం తీవ్ర అన్యాయం జరిగింది. స్పెషల్ కేటగిరీ విషయంలో కానీ, రైల్వే జోన్ విషయంలో కానీ. చాలా వరకు मरकजी आम बजट पेश किए जाने से पहले अपोजिशन एमपीज ने मरकजी वजीर स्मृति ईरानी के खिलाफ तहरीक मीरात शिकनी की नोटिस पेश की और पहले इस मामले पर मुबाहिस की मांग की, लेकिन स्पीकर सुमित्रा महाजन ने ये कहकर इस बात को टाल दिया कि नोटिसें ज़ेरे गौर हैं। हंगामे के कुछ देर बाद बजट तकरीर शुरू की गई। Madam, it is painful to me for moving a privilege motion on this day against the Honorable Union Minister, Smriti Irani ji. I have received notice on her reply on February of privilege dated 26 February and 29 February against Union HRD Minister. The matter is under my consideration. The Finance Minister has started his budget speech. This is never done. Very cheap politics. This is never done. That attention taken in the House. The budget, on budget also, they want to have score political points. Nothing can go on record. Madam, I request you, nothing can go on record. No, please. I have already said that I have received notices of question of privilege dated 26th and 29 February respectively against Srimati Smriti Irani ji. नाम आना चाहिए ना? Yes. But the matter is under my consideration. That is the thing. No. फिलहाल लेंगे एक ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
साक्षी खबर में दोबारा आपका इस्तकबाल है। आंध्र प्रदेश के बजट इजलास से पहले वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अरकान असेंबली का इजलास पार्टी सदर जगन मोहन रेड्डी की क़ियादत में लोटस पॉन्ड में मुनाकिद हुआ। इजलास में पार्टी की हिकमत अमली और सियासी सूरत हाल पर गौर हुआ। चंद्रबाबू नायडू हुकूमत की जानिब से मुसलसल इंतखाबी वादों की खिलाफ वर्जी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने का फैसला किया गया और स्पीकर के रवैये के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद पेश करने का फैसला किया गया। वाईएसआरसीपी ने चंद्रबाबू हुकूमत पर इंतखाबी वादों से इनहराफ का इल्जाम लगाया है और तेलुगु देशम में शामिल होने वालों को मुस्तफी होकर इंतखाब लड़ने का मशवरा दिया गया है। ప్రభుత్వంపై ఖచ్చితంగా అవసర తీర్మానం కూడా పెట్టబోతున్నాం। స్పీకర్ పైన కూడా పెట్టొచ్చంటే స్పీకర్ పైన కూడా రెండింటిపైన పెట్టి ఎంతో కూడా ఈ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలపైన మేనిఫెస్టోలో చంద్రబాబు నాయుడు ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయడంలో విఫలమైనటువంటి విధానాలపైన ఏ హామీలు ఇచ్చాడో ఆ మేనిఫెస్టోని తనేదో చేయనటువంటిది ఇవ్వనటువంటిది కాదు, తన మేనిఫెస్టోలో ఇది వీధి వాడ ఇల్లు ఇల్లు పోస్టర్స్ పాంప్లెట్స్ ఊకదంపుడు ఉపన్యాసాలలో టీవీలలో తను దంచినటువంటి ఆ మేనిఫెస్టోలో ఉన్నటువంటి వాటిని ఎందుకు అమలు చేయలేదని ప్రజల తరపున ప్రశ్నిస్తూ ఖచ్చితంగా కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి పైన అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టబోతోంది। ఈ ఖచ్చితంగా కూడా ఆ రోజు మీ పక్క వెళ్ళినటువంటి ఈరోజు నువ్వు డబ్బులతో ప్రలోభాలతో లాక్కున్నటువంటి శాసనసభ్యులు మేము ఖచ్చితంగా విప్పు జారీ చేస్తాం। ఆ రోజైనా వాళ్ళు విప్పుని నిన్ను నమ్మి నీకు ఓటేస్తే డిస్క్వాలిఫై అవుతారు, కానీ చూద్దాం ఖచ్చితంగా కూడా మళ్ళీ ఎన్నికలకు వెళ్లాల్సి వస్తుంది। ఏదేమైనా కూడా ఈ ప్రజా వ్యతిరేక పాలన పైన చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన నీచ నికృష్ట నిర్ణయాలపైన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తిరుగుబాటు బాట ఎగరవేయబోతున్నది। చాలా స్పష్టం। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की जानिब से रिहाइश को गैर मजाज करार देते हुए हाईकोर्ट में मफाद आमा की दरख्वास्त दाखिल की गई है। 60 एकड़ पर हो रही तामीर को मंगलगिरी एमएलए रामाकृष्ण रेड्डी ने गैर मजाज होने की शिकायत के साथ कोर्ट से रुजू किया है। कोर्ट ने दरख्वास्त कबूल करके उसकी समाअत भी की और साबिक में तहसीलदार की जानिब से जारी की गई नोटिसों से मुतालिक सवाल भी किया है। तेलंगाना के बजट इजलास से पहले आज बिजनेस रूल्स कमेटी का एक इजलास मुनाकिद हुआ। स्पीकर मधुसूदन चारी की सदारत में मुनाकिदा इस इजलास में टीआरएस, कांग्रेस, तेलुगु देशम, मजलिस और बीजेपी के फ्लोर लीडरों ने शिरकत की। इजलास में 10 मार्च से शुरू होने वाले इजलास के बारे में गौर किया गया। इजलास में अहम फैसले लिए गए। गवर्नर के खुतबे के दौरान गड़बड़ करने वाले अरकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया गया। ऐवान की कार्रवाई के दौरान प्ले कार्ड्स पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया। वक्फे सवालात में दूसरे मौजूआत पर बहस करने की इजाजत नहीं रहेगी। बेंगलुरु से ताल्लुक रखने वाले रहमतुल्लाह खान ने पैदल हज के सफर का आगाज कर दिया है। रहमतुल्लाह खान बेंगलुरु से हैदराबाद में तौक़ुफ़ करने के बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। रहमतुल्लाह खान दिल्ली में जरूरी कार्रवाइयां मुकम्मल करने के बाद वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान से सऊदी अरब पहुंचेंगे। रहमतुल्लाह खान की उम्र 60 साल है। वो सेहतमंद और चाको चौबंद हैं। यहाँ से दिल्ली रवाना होगा, नागपुर होते हुए दिल्ली रवाना होगा और दिल्ली से लाहौर, लाहौर से रावलपिंडी, रावलपिंडी से अफगानिस्तान होते हुए इस्लामाबाद, अफगानिस्तान, बगदाद, ईरान, बगदाद होते हुए सऊदी जाऊंगा। ये टोटली 8 महीने का सफ़र है। मैंने परमिशन जो है सारी हुकूमत को, हमारी कर्नाटका हुकूमत को पूर्ण को देकर हूँ और सुषमा स्वराज फॉरेन अफेयर्स है और नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनसे और पाकिस्तानी एम्बेसडर वीज़ा स्टैंपिंग करा के फिर निकलूंगा। तेलंगाना रियासत में आज से हेलमेट के इस्तेमाल को लाजमी करार दिया गया है। खिलाफ वर्जी पर पुलिस अब तक जुर्माना आयद करके छोड़ देती थी, लेकिन अब हेलमेट के और लाइसेंस बगैर पकड़े जाने पर जेल काटने की भी नौबत आ सकती है। जेल 2 दिन से 1 हफ्ते तक हो सकती है। बिला लाइसेंस वालों की गाड़ी चलाने देने वाले गाड़ी मालिकान पर भी मुकदमा दर्ज किए जाने पर गौर किया जा रहा है। रोड सेफ्टी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की सिफारिशात के हवाले से ये कवायद नाफिज किए जा रहे हैं। जमहूरी इक़्तिदार का पास रखने का दावा करने वाली तेलुगु देशम पार्टी का असल रंग मंजर-ए-आम पर आने लगा है। तिनाली बल्दी कॉरपोरेशन में 2 तेलुगु देशम काउंसलर हाथापाई पर उतर आए हैं। ये झगड़ा कहीं और नहीं बल्कि कॉरपोरेशन के इजलास के दौरान पेश आया। तेलुगु देशम काउंसलर्स गैर पार्लिमानी रिमार्क के साथ साथ एक दूसरे पर हमला करते हुए देखे गए। मारामारी में काउंसलर की शर्ट भी फट गई। मीडिया के नुमाइंदों ने इस मंजर को कैमरे में कैद कर लिया।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। जेटली ने पेश किया आम बजट, देहातों पर तवज्जो, टैक्स इस्लाहात, अक़लियतों के लिए 3,827 करोड़ रुपए मुख्तस। हवाई सफर, हीरे जवाहरात, स्मार्टफोन, सिगरेट वगैरह महंगे, डायलिसिस मशीनें और फुटवेयर हुए सस्ते। बजट पर मिला जुला रद्द-ए-अमल, बेहतरीन बजट हुकूमत का दावा, बजट कॉर्पोरेट्स के हक में अपोजिशन का रद्द-ए-अमल। चंद्रबाबू हुकूमत के खिलाफ पेश की जाएगी तहरीक अदम एतमाद, YSRCP ने किया फैसला। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।